Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture in the name of Allah. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। Today we will start the topic power, unit number 6, 9th class physics. The last time we saw Philip, we learned about energy and how it was converted when he dropped the paint bucket. Philip had to use energy to climb back down the ladder and get new paint, so he is not pushing the wheelbarrow as fast as he did earlier. Even though he is doing the same amount of work as before, and thus using the same amount of energy, the rate he is working at is slower. This means he has less power than यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि आपके पास पर्सन विच इज कैरिंग अ बकेट फुल ऑफ पेंट, ठीक है, इन अ ट्रॉली, कि वो जो पहले जो था वो ये कर रहा था कि पहले वो थोड़ा फास्टली, ठीक है, तेज तेज चल रहा था, तो कि ही इज डूइंग द सेम वर्क। वो एक ही काम कर रहा है कि उसने पेंट को लेकर आना है, उसके बाद उसने पेंट करना है, फिर वो दोबारा जाएगा, पेंट लेकर आएगा और उसको पेंट करेगा। लेकिन आपके पास उसकी स्पीड, यानी वो आप पहले तेज तेज से काम कर रहा था, आप स्लोली कर रहे थे, इट मीन्स कि अब उसकी पावर जो है वो डिक्रीज हो गई, अब उसकी पावर कम हो गई। अब पावर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है वो आप देखिएगा। has less power than before. Power is the rate at which work is done. We calculate it by dividing the work done in joules by the time taken in seconds to complete the work. The unit of power is joules per second. It is also known as the watt. W. If Philip took 20 seconds to move the wheelbarrow and did 1,000 joules of work, his power is 50 watts. Let's say Philip takes 1 minute to carry the 2K bucket up the 5-meter ladder. What is his power? First, we calculate the work done. Gravity exerts 10 Newton per kilogram on the bucket, so the weight of the bucket is 20 Newton. The work done is 100 joules. We divide that by the time taken, which is 1 minute, in order to find Philip's power. But remember, to measure power, you must use seconds, so we convert the time in minutes into seconds. Therefore, Philip's power is 100 divided by 60. So his power is 1.67 watts. And that's how you measure power. You may have seen that electrical objects also have watts written on them. This is called the power rating, and it shows the rate at which the machine does work. Obviously, this drill has more power than Philip did when he carried the paint up the ladder, and that's why we use machines, because they can exert more power than what our bodies can. Some machines are so powerful that they are measured in horsepower. 1 horsepower is 750 watts. The terms watt and horsepower were developed by Scottish engineer James Watt in the 1700s. He used the term to compare the power of horses with that of steam engines. Looks like Philip needs to find a new house. At least he understands work, energy and power, though.
कि पावर पेज नंबर, look at the page number of your work, page number 137. इसमें मैं एग्जांपल उन्होंने देखी क्या दी हुई है, the two persons have doing the equal work, both लोग हैं जो कि equal work कर रहे हैं, ठीक है. One took 1 hour to complete the work and the other person took 5 hours to complete the same work. एक शख्स ने 1 घंटे में काम कंप्लीट किया और दूसरे ने 5 घंटों में वो काम कंप्लीट किया है. तो इट मीन्स that the one person is doing the work faster than the other one. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो शख्स काम जल्दी खत्म करेगा उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी वो जिस रफ्तार से काम कर रहा है वो तेज है. तो इट मीन्स कि आपके पास इट हैज मोर पावर देन द अदर वन. So according to the definition, what is the definition? Power is defined as the rate of doing work. ठीक है, rate of doing work is known as the power. मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो पावर का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा W/T यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और आपके पास इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. If we are talking about the unit of the power, then what is the unit of the work is joule and what is the unit of the time is second. So it will be joule per second and which is equal to 1 watt, जो कि 1 watt के equal है. ठीक है, और अगर हम बात करें, मैंने कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो शख्स जितना जल्दी काम खत्म करेगा, वो जितना जो चीज़ या कोई मशीन जो है वो जितना जल्दी वो काम खत्म करेगी उतनी जल्दी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी. ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनके ऊपर पावर रेटिंग्स, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, पावर रेटिंग्स लिखी होती हैं कि वो कितना उसके उनके अंदर कैलिबर है, कितनी उनके किस रेट के साथ वो वर्क डन करेंगी. तो उसके लिए हम लार्जर यूनिट्स यूज करते हैं, लाइक सपोज किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर. ठीक है, किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, एंड हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. लुक एट दिस, यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं हमें, देखें समरी टाइप है कि पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन. पावर वो रेट है जिससे वर्क डन होता है, किस रेट के साथ, यानी कितने टाइम में कितना वर्क डन होता है, वो हमें पावर के बारे में बताता है. द फॉर्मूला टू मेजर द पावर इज वर्क डिवाइड बाय टाइम एंड द यूनिट इज जाउल, जाउल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वॉट. ठीक है ना. जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं वो आपके पास, जैसे ड्रिल मशीन है, वॉशिंग मशीन है या कोई और मशीन है, उनके ऊपर पावर रेटिंग्स लिखी होती हैं, शोइंग दैट एट विच द रेट एट विच द मशीन डज द वर्क, यानी वो रेट जिससे वो मशीन वर्क डन करेगी. ठीक है, एंड मशीन्स आर यूजफुल बिकॉज दे कैन एक्सर्ट मोर पावर देन व्हाट आवर बॉडीज कैन. अब जाहिर है हमारी बॉडी उतनी पावर एग्जर्ट नहीं कर सकती जितनी आपके पास मशीन्स कर सकती है. इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, लाइक घर में अगर कपड़े धोए जा रहे हैं, अम्मी कपड़े धो रही हैं, तो आपके पास अगर वो हाथ से कपड़े धोएंगी तो वही, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतने ही कपड़े हैं, 10 सूट हैं, तो वो आपके पास मे बी उनको 1 घंटा लग जाए. ठीक है, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन से वो धोएंगी तो मे बी विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स में कपड़े धुल जाएंगे. रीजन क्या है? बिकॉज मशीन एक्सर्ट्स द मोर पावर, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगी. So machines are more powerful as compared to the humans. Powerful machines are measured in horsepower. जो ज़्यादा पावरफुल machines होते हैं उनको हम horse power में measure करते हैं. Watt and horse power जो आपके पास units हैं, ये आपके पास जो develop की थी, that is the Scottish engineer James Watt in 1700. ठीक है. Now look at the example. अगर हम example की तरफ जाएं, now this, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम्पल ये थी कि 1 minute a boy carrying a bucket of 2 kg in the upper direction onto the ladder in 1 minute and covering the distance or height of 5 meter. उसने 5 मीटर की लैडर को कवर किया है 2 kg बकेट को लेकर और 1 मिनट उसको टाइम लगा है. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? नाउ लुक एट दिस. ठीक है, अब आपके पास डाटा क्या गिवन था? डाटा आपको गिवन था, टाइम आपको गिवन था 1 मिनट. अल्टीमेटली 1 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, दैट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. ठीक है, आपको जो मास गिवन है दैट इज द 5 kg, और जो उसने अपवर्ड डिस्टेंस कवर किया या हाइट कवर किया दैट इज द 5 मीटर. ठीक है, सॉरी, मास आपको गिवन है 2 kg. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपने फाइंड आउट करनी है पावर.
Now what is the formula of power? पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर का फॉर्मूला है P is equal to W by T, वर्क डन डिवाइडेड बाय T. टाइम तो आपके पास है 60 सेकेंड्स, लेकिन वर्क डन पहले आप कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F S. अब देखिए यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, क्योंकि बॉडी बॉय इज मूविंग वर्टिकली. तो अगर हम ये लिखें F इज इक्वल टू mg, मींस mg, और s की जगह हम लिखते हैं हाइट यानी h. ठीक है, और जगह मास की वैल्यू आपके पास क्या थी? मास इज 2 kg, g is 10 and height is 5 meter. So a work done will be 100 joule. ठीक है, so putting the values in this equation number 1, 100 joule divided by time. 100 joule divided by time is power is equal to work done divided by 60 seconds. So it will be 1.6 joule per second, and joule per second is equal to the watt. यानी आपके पास वो जो पावर ऑफ दैट पर्सन है, वो जिस बच्चे की पावर है जिससे वो वर्क डन कर रहा है, दैट इज द 1.6 watt. Got it? अब देखिए व्हाट इज द पावर. पावर, अब पावर की जो यूनिट है वॉट. अब वॉट की भी तो डेफिनेशन होगी ना कि वॉट आपके पास किसके इक्वल होता है. यानी देखिए ये जस्ट आप फार्मूला से देख लें. इफ अ बॉडी इज डूइंग द वर्क ऑफ 1 joule in 1 second, अगर 1 joule 1 joule वर्क डन हुआ है इन 1 second, then it means कि आपके पास पावर इज 1 watt. If 2 joule work is done in 2 seconds, then the power will be 2 watt. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वॉट की भी डेफिनेशन हो जाएगी. Again, I will read the numerical. A man has pulled a cart through 35 meter, applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. एक कार्ट है, इसके ऊपर 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है और उसने डिस्टेंस कवर किया है 35 मीटर. तो व्हाट विल बी द वर्क डन? As we know that the work done is equal to Fs. Work done is equal to Fs. So आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू Fs है. तो फोर्स आपको आपके पास गिवन है 300 और डिस्टेंस भी आई थिंक सो 35. जितना भी आपको गिवन है यू विल मल्टीप्लाई इट, योर आंसर विल बी हियर. ठीक है, सिंपल वर्क डन आपके पास ये हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2. द ब्लॉक ऑफ weighing block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. कि आपके पास एक ब्लॉक है जिस पर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है और उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है. तो आपने लिखना है कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, बिकॉज इट इज चेंजिंग द पोजीशन. द बॉल ब्लॉक इज चेंजिंग द पोजीशन. तो जब पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है. ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा कि 20 न्यूटन फोर्स लग रही है और वर्टिकल जो हाइट कवर हो रही है, यानी हाइट कवर हो रही है, दैट इज 6 मीटर. तो व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड? अब पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि हमारे पास होता है mgh. अच्छा, अब आप इसको लिख दें mg जो होता है वो w के इक्वल होता है. ऐसे ही होता है ना, mg जो होता है वो w के इक्वल होता है, क्योंकि ना हमें मास गिवन है ना हमें g गिवन है. ठीक है, अब w किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है. ठीक है, तो फोर्स आपको गिवन है तो सिंपल आप कर लें 20 मल्टीप्लाई बाय 6, इट विल बी 120 जूल. ठीक है, अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं. ठीक है, आप एक ये कर लें सिंपल कि आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होगा. H आपको गिवन है mg इज इक्वल टू, जैसे हम करते हैं F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg है, तो आप रिवर्स चले जाएं. mg इज इक्वल टू W और W जो होता है वेट इज इक्वल टू द फोर्स. ठीक है, फोर्स की इक्वल होगी. तो फोर्स आपको गिवन है, तो यू विल बी गेट द आंसर 120 जूल.
Thank you so much. Have a nice day and a blessed day. Allah Hafiz to all of you.